Hey folks, Saksham this side from ACE IPM. IIM Jammu has finally released its first merit list for the admission in the IPM program. In this video, we are going to have a look at it, understand the raw cutoffs, as well as the probable waitlist movement that might happen. So without any further ado, let's begin. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू गो ऑन आई एम जम्मूज वेबसाइट दिस पेज विल ओपन अप. आपको यहाँ बैनर दिख जाएगा. साथ ही में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन के अंदर मेरिट लिस्ट दिख जाएगी. जैसे ही आप मेरिट लिस्ट ओपन करेंगे इट विल हैव 4 पेजेस. द फर्स्ट 2 पेजेस आर अबाउट द पीपल हु हैव बीन सेलेक्टेड. द नेक्स्ट 2 पेजेस आर अबाउट पीपल हु हैव बीन वेट लिस्टेड. आपको यहाँ रोल नंबर्स दिख जाएंगे. यू विल हैव टू मैच योर रोल नंबर्स टू सी इफ यू आर सेलेक्टेड और नॉट और यू आर वेट लिस्टेड और नॉट. सो फर्स्ट 2 पेजेस selection, next 2 pages wait list. People who have been selected will also receive a mail shortly. The mail will have the payment link and all other details. You have a deadline to accept this admission offer till 2nd July, and after that subsequently you need to pay your first term fee by 9th of July. Now in that case you have to pay some offer acceptance amount as well. That should be around 50,000 or 1 lakh. So that will be taken by 2nd of July. Once these people pay the amount on 2nd of July, some of them will not pay, and basis of that the next waiting list will come either on 2nd July evening or 3rd July morning. So that is how this is going to be like. Now in terms of the number of students, candidates that have been called, the number of students who have been put in the selection list are 150, and number of people who are put in wait list is 205. In that case the website mentioned कि हमारा seat matrix 120 का होगा, but I had a discussion with some of the students in IIM Jammu currently and they mentioned that the institute has increased the number of seats to 140 this year. फिर भी 10 बच्चे हैं वो extra call हुए हैं. It's either buffer call or the number of seats has increased to 150, which is a good thing for us, right? So that is how all of this is going to be like. In terms of इन सारे given that we don't have accurate idea कि cut off exactly क्या है, यहाँ पर हमें सिर्फ बच्चों के रोल नंबर दिए हैं. So we had our pool of data of our students who got selected in IIM Jammu. So in that case we had a look at the data and we figured out क्या आपके raw cutoffs रहेंगे in terms of your score. So let's have a look at that and also see कि waitlist movement कितना हो सकता है. Now before that, if in case you feel like you are going to get a shortlist from Indore or Ranchi for your interviews, then you can also have a look at the interview preparation course that ACE-IPM runs. This course will take you through the entire basics of how an interview is like, provide you with guidance as well as mock interviews by your seniors who are currently studying in IIM Indore, who have already gone through that process and know exactly what it takes for you to get in as well. It's available only for 399. You have 3 mock interviews that you can give. Even if in case you're living in Delhi NCR, you have an option to give offline mock interviews as well. So you can check this out. Now moving forward, basis of the data that we have, this is how the cutoffs are going to look like. अभी जो हमारा selection list आया है उसमें general male का cutoff is 350, female का it is 328, wait list में 333 and 311 respectively. NCOBC में it is 303, 281 and wait list is 271 and 249. EWS में it is 318, 296 and wait list is 300 and 279. आपको दिख रहा होगा इन टर्म्स ऑफ अ मेल कैंडिडेट एंड अ फीमेल कैंडिडेट, इनके बीच में स्कोर का डिफरेंस 21 से 22 मार्क्स का रहेगा. दैट इज बिकॉज देयर इज अ 5% कॉम्पोनेंट फॉर जेंडर डाइवर्सिटी विच इज देयर इन द केस ऑफ IIM जम्मू. सो आपका उससे 21 या 22 मार्क का डिफरेंस रहेगा बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल कैंडिडेट. अगर मैं बात करता हूँ जेंडर डाइवर्सिटी इन IIM बोधगया, वहां पर भी है. ऑल्दो वहाँ कैलकुलेशन का बेसिस थोड़ा डिफरेंट है, वहां पर सुपरा न्यूमरी सीट्स होती हैं. एंड इन दैट केस हमारे पास 2023 का तो डेटा नहीं है क्योंकि अभी तक नहीं आया है, बट अगर हम 2022 के डेटा की बात करें तो जो लास्ट लिस्ट आई थी उसमें एक जनरल मेल और फीमेल कैंडिडेट के बीच में 15 मार्क का डिफरेंस था. ओबीसी में इट वाज 32, नॉट ओबीसी एक्चुअली, ईडब्ल्यूएस में इट वाज 32 एंड ओबीसी में इट वाज 20. सो रफली इसके अराउंड आपका IIM बोधगया में भी डिफरेंस रहेगा बिटवीन द मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर अ मेल कैंडिडेट टू गेट इनटू दीज इंस्टीट्यूशंस एंड अ फीमेल कैंडिडेट टू गेट इनटू दीज इंस्टीट्यूशंस. साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो गिवन दैट 150 लोगों को तो ऑलरेडी कॉल कर दिया है एंड 205 लोगों को वेट लिस्ट में भी रखा गया है. वेट लिस्ट मूवमेंट काफी ज्यादा होगी, स्पेशली गिवन दैट इट इज IIM जम्मू. द रीजन वाई आई से सो इज दैट अभी तो IIM जम्मू का लिस्ट आया है, फिर IIM बोधगया की लिस्ट भी आएगी. अब दोनों की लिस्ट जब आएगी देयर विल बी पीपल जो IIM बोधगया चूज करेंगे, देयर विल बी पीपल जो IIM जम्मू चूज करेंगे एंड दोनों लिस्ट में उनका नाम होगा. इन दैट केस ऑलरेडी बच्चे आधे हो जाएंगे, राइट? अगर 150 लोगों को कॉल कराए, 75 विल गो टू IIM बोधगया, 75 विल स्टे इन IIM जम्मू. तो 75 का वेट लिस्ट मूवमेंट तो वहां ही हो जाएगा. उसके बाद देयर विल ऑल्सो बी पीपल, अभी IIM रोहतक का रिजल्ट आने ही वाला है. IIM रोहतक का जैसे ही रिजल्ट आता है इन दैट केस वहां से वेट लिस्ट मूवमेंट होएगा. IIM इंदौर का रिजल्ट आएगा,
उससे वेट लिस्ट मूवमेंट होएगा, आई एम रांची का रिजल्ट आएगा, उससे वेट लिस्ट मूवमेंट होएगा। सो इन दैट केस ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर वेट लिस्ट मूवमेंट यहाँ पर काफी सारा होने वाला है। जस्ट बिकॉज आपका इस वेट लिस्ट में नाम नहीं आया डज नॉट मीन कि आप वेट लिस्टेड नहीं हो, आप ऑलरेडी रिजेक्टेड हो। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी द केस। जब सेकंड लिस्ट आएगी उसके साथ वेट लिस्ट में और बच्चे भी ऐड होंगे, जब थर्ड लिस्ट आएगी सब्सिक्वेंटली फोर्थ आएगी तो बच्चे वहां पर ऐड होते जाएंगे, इज व्हाट माय अजम्पशन इज बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स ट्रेंड एज वेल। सो इन दैट केस प्लीज वेट। अभी आपका बोधगया का रिजल्ट आएगा, वहां से वेट लिस्ट मूवमेंट होएगा, फिर रोहतक का आने वाला है, फिर इंदौर की शॉर्टलिस्ट एंड रांची की शॉर्टलिस्ट सब्सिक्वेंटली रिजल्ट आएगा। सो इन दैट केस जो इंटायर प्रोसेस है, अगर आप देखते हैं आई एम इंदौर अगर लेट्स से रिजल्ट पुट आउट कर देता है, शॉर्टलिस्ट कर देता है, उसके बाद वो इंटरव्यूज लेगा, फाइनल रिजल्ट निकालेगा, उनका रिजल्ट ही जुलाई एंड तक जाने वाला है। सो इन दैट केस जब तक इंदौर, रांची, रोहतक का रिजल्ट कंक्लूड नहीं हो जाता, बोधगया और जम्मू का भी रिजल्ट कंक्लूड नहीं होएगा, बिकॉज वेटलिस्ट मूवमेंट वहां पर होता रहेगा। इवन बाद में जाके सीवीटी की वजह से भी हो सकता है कुछ बच्चे मूव करें। सो इन दैट केस आपकी वेटलिस्ट मूवमेंट होगी, बट ऑफकोर्स टाइम लेके होगी। सेकंड लिस्ट आपकी 3 जुलाई 2 जुलाई को आ रही होगी, सब्सिक्वेंटली अगली लिस्ट करते करते ये रिजल्ट का प्रोसेस आपका या तो जुलाई एंड तक जाएगा या फिर इवन अगस्त मिड तक जा सकता है। इट इज it is a full probability of that happening. That being said, अगर आप वेट लिस्ट के अंदर हैं, आई फील लाइक आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। एंड ऑल्सो पीपल जिनका वेट लिस्ट में अभी नंबर नहीं है बट उनका वेट लिस्ट से कुछ मार्क्स ही कम है, उन लोगों के भी पूरे पूरे चांसेस हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ सिलेक्शन। बाकी तो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ वेट लिस्ट मूवमेंट इज गोइंग टू बी लाइक। दैट्स अबाउट इट। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर कोई भी कॉमेंट है आप नीचे कर सकते हैं एंड वील हेल्प यू आउट विद दैट। If you like the video, please leave a like, share it with your friends, and I'll see you in another one. Till then, stay safe, take care, all the best, and bye bye.